brain has this liquid present between them which is known as cerebrospinal fluid. It provides cushioning to the brain and nutrients also. क्या provide करता है वो fluid? Cushioning and nutrients. Write it down. It is not given but it is asked in exams. कौन सा fluid है? The fluid present between the brain and the skull is known as cerebrospinal fluid. No. No. It can happen internally also. Internal injury की वजह से भी आपका brain internal injury in the form of समझ लो spinal cord, not directly your brain, or there is a clot in the brain, sudden shock. ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से आपका brain, it is not necessary that your skull has to break in order to damage the brain. There can be some internal problem. ठीक है, injury. Brain dead, yes. If the brain is not working, if the 80 or 80 to 95% of the brain is not working, the person is declared as dead, brain dead. ठीक है बेटा, प्लीज वो सब में नहीं जाए क्या? थैंक यू. ऑर्गन ट्रांसफर हाँ हो सकता है 6 आवर्स के विद इन 6 आवर्स. हाँ चलो, ब्रेन ट्रांसप्लांट, चेंज ऑफ द ब्रेन ऑर्गन. ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सबने लिख लिया. It is present between the brain and the skull and it provides cushioning and nutrients to the brain. It provides cushioning and nutrients to the brain. Clear to everybody? Coming to each and every labeling part of your brain. ठीक है? Now brain that is covered, that sits inside the skull is known as cranium. The brain that sits inside the skull is known as cranium. The first that I have marked over here. Cranium सब लोग mark करेंगे. Yes. स्कल को तोड़ के गया तो फ्लूइड है ना, फ्लूइड है ना सेरेब्रोस्पाइनल. क्या प्रिपेयर होते हैं? रिपेयर स्कल. एक हाँ वो होता है, स्कल प्रिपेयर हो सकता है बट रिपेयर हो सकता है, बट हाँ स्कल इज, एवरी बोन इन योर बॉडी इज रिपेयरेबल. एवरी बोन इन योर बॉडी इज रिपेयरेबल, चाहे वो स्कल हो, चाहे वो छोटी सी बोन ऑफ योर लिटिल फिंगर ऑफ योर लेग, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल. ठीक है, मुझे नहीं पता. स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो हाँ yes. The person is bedridden, he will not die. But what if the spinal cord do we have a doctor father or doctor mother in the class? Anybody who has a doctor father and doctor mother? Brother. Please ask all these questions to him. ठीक है, चलो. So the skull, I know. So the skull is known as the cranium. So the skull is known as the cranium, and the fluid present between the brain and the skull is cerebrospinal fluid. Now coming to the forebrain. Forebrain मतलब the most proportion of the area that is covered. जो आपको ये portion दिख रहा है, ये portion पूरा क्या है आपका? Forebrain, which is also known as cerebrum, which is also known as cerebrum. cerebrum, cerebrum. It is given. ठीक है, ये first cerebrum. Clear? Now इसका काम क्या होता है? cerebrum का क्या काम होता है? Yes. What you think, what you analyze, what you have learned, what you have memorized, everything, every action related to reasoning, logical and memorizing is done in the forebrain, that is known as the cerebrum.
The cerebrum is helpful in reasoning, thinking, analyzing and memorizing. तो सब कुछ logically जो आप brain use करते हो while you are doing maths, while you are learning something, everything is done through cerebrum. समझ में आ रहा है? Clear to everybody? Also cerebrum is that forebrain is that part of your brain which is involved in regulating your voluntary action. Voluntary और involuntary actions क्या होते हैं पहले तो? Yes. Yes. Voluntary actions can be controlled by a body और involuntary actions control नहीं हो सकते. Voluntary actions जैसे कि moving your hands, walking, speaking, doing all the activities. ये सब क्या है? Voluntary action. It is done by forebrain, that is cerebrum. Clear to everybody? What are the function? Voluntary. कौन सा एक्शन? वॉलेंट्री. मैं खुद की मर्जी से मूव कर रही हूँ. ठीक है? सेरेब्रम. हाँ. वॉलेंट्री मतलब विच कैन बी कंट्रोल्ड. आई कैन कंट्रोल माई हैंड टू स्टॉप राइटिंग. आई कैन कंट्रोल माई हैंड टू स्टार्ट राइटिंग. जो चीज़ें ब्रेन कंट्रोल कर सकती है उसे बोलते हैं वॉलेंट्री. जो चीज़ें ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकती उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री. और किसी को समझना है क्या होता है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? क्लियर टू एवरीबडी? सो ऑल द एक्टिविटीज दैट कैन बी कंट्रोल्ड, वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय forebrain which is known as cerebrum. ठीक है? Now comes the midbrain that is located here. This white portion, can you see? This is your midbrain. Midbrain का क्या काम होता है अब? Yes, one of the function is to control involuntary action. Forebrain का काम है to control voluntary action. Midbrain and hindbrain का क्या काम है? To control involuntary actions. समझ में आ गया? नेक्स्ट एक और एक फंक्शन है मिड ब्रेन का, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर मूवमेंट्स. मोटर न्यूरॉन का काम है टू मूव, गिव एक्शन टू द मोटर न्यूरॉन. तो वो सब डिसीजंस कौन करता है? आफ्टर योर मोटर न्यूरॉन हैज वर्कड, द मैसेज विल बी सेंड टू द मिड ब्रेन फॉर फर्दर reactions. समझ में आया? For further thinking the motor neuron will send a message to mid brain. समझ में आ गया? Apart from that your auditory and your visual things are also controlled by mid brain. मतलब अगर मुझे चश्मा लगा है, I cannot see properly, so वो किसका काम है? There is a malfunctioning in mid brain. समझ में आ रहा है? Visual and auditory, your throat और आपकी आईज, दे आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन. क्लियर? नाउ कम्स, यस, मैंने कब बोला इनवॉलेंट्री एक्शन ब्रेन कंट्रोल में? फोर ब्रेन नहीं करता, मिड और हिंड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है. मतलब उसके थ्रू होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस. किसके थ्रू? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ठीक है? नेक्स्ट कम्स द हिंड ब्रेन, दैट इज द ब्रेन. व्हाई इट इज नोन एज हिंड ब्रेन? बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ योर ब्रेन. तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम. ठीक है? कौन सी चीज़ें होती है? पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम. ठीक है? इट इज ओनली गिवन मेड्यूला बट द फुल नेम इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ठीक है? ओके, गेटा. ओके, नाउ पॉन्स का फंक्शन है कि वो आपकी स्लीप,
ओके, पॉन्स का क्या काम है? इट कंट्रोल्स योर स्लीप साइकिल. योर स्लीप साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय पॉन्स. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. Next is your medulla oblongata, very important part of your brain which connects the brain to the spinal cord. So जो भी messages spinal cord से brain के through जाते हैं तो वो किसके through connected होते हैं? Medulla. You see that stem, it is also known as the stem of the brain because it connects brain to the spinal cord. अगर किसी के question paper में आया what is the name of the stem of the brain और आप लोगों ने नहीं लिखा है तो देख लो. Medulla oblongata is known as the stem of the brain because it connects the brain to the spinal cord. Clear to everybody till here? Next, we are coming to cerebellum. Cerebellum, this आपको leaf like structure दिख रहा है? Involuntary. Cerebellum third part है, ठीक है? Cerebellum is the third part of your hindbrain. It controls the involuntary actions and also most important function is body balance. मतलब अगर आप unconscious हो, which part of your brain is affected? Cerebellum. अगर somebody has taken drinks और या फिर drugs or some toxic substance तो कौन सा part of the brain affect होता है? Cerebellum. Because of that you are not able to have body balance. अगर cerebellum will not properly function, you will not have a body balance. So the main function of cerebellum apart from controlling involuntary action is maintaining body balance. Yeah, maintaining the posture of your body. Clear to everybody? Ma'am, if a person is not well and is going through pain, so it depends on. Yes. Anything that is related to your body posture or body balance is related to cerebellum. Cells will not be able to receive messages जिसकी वजह से body balance नहीं होगा. ठीक है, cerebellum में जो neurons होंगे they will not be able to receive messages जिसकी वजह से आपका body balance नहीं होगा. समझ में आया? cerebellum is the part of a hind brain. Clear? अब तक हमने पढ़ लिया है क्या क्या. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज cerebrum which consists of which is a part of forebrain and it constitutes most of the percentage of your brain and it is responsible in voluntary actions and thinking, analyzing, reasoning and memorizing. ठीक है. Next is your midbrain. Midbrain का काम है to control involuntary actions and motor neurons and visual and auditory. Next is your hindbrain. उसके तीन पार्ट से कौन से? Pons, medulla oblongata and cerebellum. Pons का काम है to maintain sleep cycle. Medulla oblongata is also known as the stem of the brain and it connects brain to the spinal cord. Its main function is to supply messages to the brain through the spinal cord. ठीक है. Next is cerebellum. Apart from controlling involuntary action, its another important function is maintaining body balance. Clear till here everybody? Also the skull is known as cranium. The skull is known as cranium and the gap between the skull and your brain is filled with a fluid known as cerebrospinal fluid. Its function is to provide cushioning to the brain and also nutrients. हो गया यहाँ तक? Yes. We are coming. I'll give you the chart. Next, very important, hypothalamus. इधर देखो, जिसको pronounce नहीं करना आ रहा है और जिसको आ रहा है वो भी देखे. Hypothalamus. Can you see this? Hypothalamus. Hypothalamus का क्या काम होता है? Now this is this part of the midbrain. Midbrain का ये portion क्या होता है? Hypothalamus. इसका क्या काम होता है?
इट, दो ना उसको, कौशल को. ओके, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम का क्या काम था? टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस. हाइपोथैलेमस का काम है टू मेंटेन द इनर बैलेंस ऑफ योर, इंटरनल बैलेंस ऑफ योर बॉडी. इंटरनल बैलेंस मतलब every organ should function properly and at the correct time. ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस. बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट ऑफ ब्रेन पर. व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच regulates या maintains the internal body balance of, sorry, maintains the internal balance of your body. Clear? हाइपोथैलेमस क्या होता है? Maintains or regulates the body balance, internal body balance of. It maintains the internal balance of your body. ठीक है? हाइपोथैलेमस इज दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनका बैलेंस बनाकर रखता है. समझ में आया? इंटरनल ऑर्गन्स का बैलेंस बनाने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस. क्लियर? नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड. अगर मैंने बोला है सेकेंड नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो मतलब क्वेश्चन किस पर आएगा? मास्टर ग्लैंड. यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट इट्स फंक्शन. पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. अब मास्टर कौन होता है? जो सबको कंट्रोल करता है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी. क्या कंट्रोल करता है वो? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये सब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. व्हाट आर डिफरेंट ग्लैंड्स. अगर किसी को याद नहीं है, आई एम रिवाइजिंग. एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कि थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, इंसुलिन, टेस्टीज एंड ओवरीज. ठीक है? टेस्टीज एंड ओवरीज. ये सब किसका काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज. सबसे पहले अब एक और एक चीज सुननी है, आप लोगों को समझनी है. हाइपोथैलेमस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसको भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. व्हाई आर दे कनेक्टेड? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रिलेशन है? हाइपोथैलेमस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सब ग्लैंड्स को मैसेज सेंड करेगा जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीट होंगे. तो अल्टीमेटली वन मोर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू सेंड सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है? टू सेंड मैसेजेस टू ऑल अदर ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स. टू रिलीज हार्मोन्स. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम इन द ह्यूमन ब्रेन? ओके. आप लोगों ने सब कुछ मार्क किया है जो मैंने दिया है? एवरीथिंग इज मार्क जो मैंने ब्लैक में लिखा है? पक्का? ठीक है. एक और एक चीज़, मेरे पास जगह नहीं थी सो आई रोट इट हियर. या अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हाइपोथैलेमस में बाय एनी चांस 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, यूजुअली नहीं आता है, 1 मार्क का ही आता है हाइपोथैलेमस का. अगर एक या दो मार्क का आया तो आपको क्या आंसर लिखना है? हाइपोथैलेमस हेल्प्स मैनेज बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, blood pressure and sleep, and it also releases hormones in the form of electrical signals to pass on to pituitary glands. Clear? And it is also responsible for the stable state, that is balance of your internal organs. ठीक है? Clear to everybody?
नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? अपार्ट फ्रॉम दैट उसका फंक्शन क्या है? सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करना, बट वो खुद कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन। मतलब आपकी बॉडी डेवलपमेंट किससे रिलेटेड में है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है हार्मोन? थायरॉक्सिन, सॉरी, ठीक है, विच मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट इज एडर्नल ग्लैंड विच सिक्रीट्स एडर्नलिन। उसके वर्ड से ही उसका हार्मोन है एडर्नलिन। वो क्या है? वो क्या सिक्रीट करता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। दिस विल कम फर्दर, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से। नहीं, अभी लिख लो, अभी लिख लो। एडर्नल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? एडर्नलिन, दैट इज फ्लाइट और फाइट हार्मोन। नेक्स्ट इज ओवरीज, जो क्या रेगुलेट करेगा? रिलीज ऑफ एग्स एंड सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, ये सब हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरीज क्या रेगुलेट करता है? सिक्रीशन ऑफ एग्स एंड सेक्स हार्मोन। टेस्टिस क्या सिक्रीट करते हैं? स्पर्म्स। क्या सिक्रीट करते हैं? स्पर्म्स। ये सब किसके अंदर आता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज आर ऑल अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज राइट इट डाउन। एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, बट वो उन सब उसके अंदर आएगा तभी तो वो मास्टर रहेगा ना। यस, करेक्ट। क्या? आई नो बट मैंने लिखवा लिया अभी। गुड। चलो एक क्विक रिवीजन करेंगे। जूम करो। इसके बाद एक प्लांट स्टिमुलस वाला पार्ट है, वो मैं स्किप करके, स्किप मतलब इन द सेंस आई टेक इट इन द लास्ट। मुझे एंडोक्राइन सिस्टम कनेक्शन में पढ़ाना है ब्रेन के। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वाई? बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। रिटन एवरीबडी? पैक pack. You can leave those who have written. Those who have written only they will leave. मेड्यूला भी करता है, हाइपोथैलेमस भी करता है। अब वाई? देन यू हैव टू गो 11th and 12th, उसमें पढ़ोगे आप अच्छे से। रखे रहने दो उधर, दो इसको प्रणय को। प्रणय पेंसिल पास करो, आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस, बैकअप। कहीं से तो शुरू होगा ना इनवॉलेंट्री एक्शन। देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट लुक्स आफ्टर इनवॉलेंट्री एक्शंस। डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को? समझ में आ रहा है?